Assalamu alaikum. Hi, entrepreneurs. This is your host Zamir Hussain from Wealth Foundation and Eagle Testing Service. I hope you enjoyed last two sessions which were about entrepreneurship. In the first session, we had discussed different types of businesses and different aspects and characteristics of an entrepreneur. In second session, we have discussed the mindset of an individual who is going to become an entrepreneur. Today's topic is the mindset of corporate entrepreneur, and we will discuss in detail what corporate sector is. So let's start the corporate sector, the mindset of corporate sector. Well, here we are, and this is the mindset of corporate slide of corporate entrepreneurship. Well, we will discuss in today's lecture. We will discuss various things. First of all, we need to understand what entrepreneurial mindset is in the organizations, and then we illustrate the thinking, the entrepreneurial thinking of individuals in an organization, and then we will describe corporate obstacles preventing innovation within the corporations. uh, in later stage, we will discuss the re-engineering corporate thinking, and then specific elements of corporate entrepreneurial strategy to re-engineering that corporate thinking, as well as an interactive process of corporate entrepreneurship. So let's start, guys. I hope you enjoyed last two sessions. So let me start with the mindset of organizations, entrepreneurial mindset of individuals in an organization. So let's start what it is basically. डस्टर किधर गया? इधर डस्टर ले आओ. Corporate entrepreneurial mindset. Okay. Well, so corporate entrepreneurial mindset. So point first is first point is the factors involved to emerge in the entrepreneurial economy. So what type of factors are involved in the corporate sector? First of all, the rapid evolution. Rapid evolution means revolutionary change of knowledge and technology. First of all, we need to introduce different types of technologies in the organization. That means the revolutionary change in the behavior, in the way of working in the organization by introducing different knowledge sites as well as technology sites. How will we build the capacity of the trainees of the organization, organizational employees? What will be the basic elements? We need to build the capacity.
बिल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉयज़, हमें एम्प्लॉयज़ की कैपेसिटी को बिल्ड करना है, ओके। और वी नीड टू इंट्रोड्यूस टेक्नोलॉजी इफ़ वी वांट टू मेक रैपिड चेंजेस। देन उसके बाद क्या करना है, हमें प्रोफाइलिंग करनी है और जो डेमोग्राफिक ट्रेंड्स हैं उसको देखना है कि किस तरीके से यहाँ पर क्या क्या टेक्नोलॉजीज इवॉल्व हो रही है और किस तरीके से। तो वी नीड टू फोकस डेमोग्राफिक ट्रेंड्स, ओके, डेमोग्राफिक ट्रेंड्स को, ताकि हम नए वेंचर्स को डेवलप कर सकें, सो दैट वी कैन डेवलप न्यू वेंचर्स। We need to understand different demographic trends currently evolved in the organization, in the region, so that we can easily develop new ventures. उसके बाद जो है वेंचर कैपिटल मार्केट इस वक्त जो है आपको पता है कि बिल्कुल इफ़ेक्टिव रोल अदा कर रहे हैं फंडिंग मैकेनिज़्म में। So we need to involve different venture capital markets, become an effective funding mechanism. आजकल जिस तरह आपको पता है कि अमेरिकन इंडस्ट्री ने इस चीज़ को बहुत ही इम्प्रूव किया है, वेंचर कैपिटल को, वेंचर कैपिटलिज्म को, और वेंचर कैपिटलिज्म जैसे जैसे इवॉल्व हो रही है वहाँ पे, तो बेसिकली क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप मैनेज भी हो रही है और एंटरप्रेन्योरशिप ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर आ रही है। यानी नई नई मार्केट में रिसर्च के साथ साथ नई नई प्रोडक्ट्स आ रही हैं, नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ आ रहे हैं, नए नए ट्रेंड्स आ रहे हैं। इसी तरीके से हम आगे अगर चलें तो डज द फर्म इंकरेज एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग, हमें क्या देखना है, बेसिकली वी नीड टू असेस the support from organization, for what, for innovation। जिस तरह मैंने लास्ट में कहा कि we need what we need basically rapid evolution of knowledge and technology। तो क्या हमें ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से पूरी सपोर्ट है कि हम पूरे पैरामिड को शिफ्ट करने जा रहे हैं, और उसमें हमें देखना पड़ेगा कि इनकरेजमेंट मिलती है या नहीं। तो बेसिकली वी नीड टू नो डज द फर्म इंकरेज एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग। ये इंतहाई अहम सवाल है इस वक्त। अगर हम देखें जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाना, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना, एंटरप्रेन्योरशिप को मैनेज करना, और उस मैनेज में करने में अगर हमें कोई मदद नहीं मिलती ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से चेंज लाने के लिए, तो दैट मीन्स देयर आर सम ऑब्स्टिकल्स एंड वी नीड टू रिमूव दोज ऑब्स्टिकल्स। उसके बाद इसी तरह से हमें ये भी असेसमेंट करनी है कि जो वहाँ का जो एम्प्लॉय है, जो गेम चेंजर है, वो क्या परमिट्स दे रहे हैं, जो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ के साथ साथ जो बॉसेस हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, यू कैन कॉल देम डिसीजन मेकर्स, तो क्या वो आपको परमिशन दे रहे हैं, या परमिशन दे रहे हैं तो क्या वो बहुत से ऑब्स्टेकल्स के बाद, बहुत सी क्लियरेंस के बाद दे रहे हैं, और बहुत से खर्चात के बाद दे रहे हैं। मीन्स आर दे रेजिस्टिंग आर इजीली परमिटिंग यू टू गो फॉर द चेंज। मकसद ये है। तीसरी असेसमेंट हमें करनी है कि ये जो फर्म है, इनको हम अगर इनफॉर्मल वे में नए आइडियाज़ देते हैं तो उसमें इवॉल्व क्विकली हो सकता है, या फॉर्मल तरीके से इस चीज़ को भी असेस करना ज़रूरी है। दैट मीन्स कि हमें जो भी इनफॉर्मल वेज़ हो या फॉर्मल वेज़ हो रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए, फॉर ट्राइंग द न्यू आइडियाज़, फॉर ट्राइंग द न्यू इनोवेशंस, उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें दरकार हैं, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट।
उसके बाद क्या है, फोर्थ वन, हैज़ द फर्म डेवलप्ड वेज टू मैनेज मैनी स्मॉल एंड एक्सपेरिमेंटल इनोवेशंस। क्या इस फर्म में पहले कोई छोटे स्केल के ऊपर या बड़े स्केल के ऊपर किसी किस्म के कोई तजुर्बात मुशाहिदात हुए हैं इसी इनोवेशन के साथ, इसी इनोवेशन के साथ या किसी भी इनोवेशन के साथ, यानी जस्ट टू ब्रिंग अबाउट अ न्यू चेंज। इसी तरीके से हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो जो इसी कंटिन्यूएशन में, तो क्या जिस तरह मैंने कहा कि सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन से मिलती है, तो यहाँ पे भी क्या जो सिस्टम है वो आपको टॉलरेट करेगा मिस्टेक्स के लिए। इज़ द सिस्टम सेटअप टू इनकरेज रिस्क टेकिंग एंड टू टॉलरेट मिस्टेक्स? इज द सिस्टम सेटअप टू इनकरेज रिस्क टेकिंग एंड टू टॉलरेट मिस्टेक्स? क्या सिस्टम जो सेटअप किए जा रहे हैं वो रिस्क टेकिंग को और मिस्टेक्स को टॉलरेट करेगा या इनकरेज करेगा? या आर people in the company more concerned with new ideas or with defending their turf? या जो लोग कंपनी में काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, वो आपके आइडियाज़ को, अपनी चीज़ों को डिफेंड करेंगे या न्यू आइडियाज़ के साथ चलेंगे? व्हाट बेसिकली वी नीड टू असेस देम। उसके बाद फंक्शनली कितना इजी होगा, कितना ऑटोनॉमस होगा, टीम्स की सपोर्ट के या कोऑपरेशन के बगैर या नहीं। सो दैट मीन्स वी नीड टू मैनेज ऑल थिंग्स फॉर्मली एज वेल एज इनफॉर्मली। क्यों? क्योंकि वी नीड अ कॉन्जिनल एनवायरनमेंट, लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर द एम्प्लॉयज़ टू अडॉप्ट द सिस्टम, ताकि वो रेजिस्ट ना करें, इसको अडॉप्ट करें। दैट इज़ द ओनली रीज़न। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं, आगे चलते हैं, तो रूल्स क्या हो सकते हैं इनोवेटिव एनवायरनमेंट के? सबसे पहला रूल क्या हो सकता है, जिस तरह लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि हमारी अप्रोच जो है ना, ये होनी चाहिए आई कैन, वी कैन। जिसने आइडिया दिया उसके बाद वो टीम में शिफ्ट हो गया, तो क्या हुआ? वी कैन। दैट मीन्स द एक्शन मस्ट बी इनकरेजिंग, द एक्शन मस्ट बी इनकरेजिंग, यानी क्या करना चाहिए हमें? इनकरेज एक्शन। उसके बाद जिस तरह हमने कहा कि फॉर्मल वेज भी हमें अपनाने चाहिए और इनफॉर्मल वेज, जो कुछ चीज़ें आ सकती हैं किसी भी समझ में, किसी की एम्प्लॉय की इम्प्रूवमेंट के लिए, we need to apply, we need to adopt all those methods which may increase the performance and increase the learning of an employee. Then we need to establish, we need to create a tolerance culture for the failures as well as different type of risks, so that we can learn out of those mistakes, we can learn out of those experiences. Then we must be persistent in getting an idea to market. persistent होने चाहिए हम लोग मार्केट में इस आइडिया को लेकर आने के लिए। we reward innovation for innovation's sake. उसके बाद we need to plan, physical plan out of the enterprise to encourage informal communication. Put people on small team for future oriented projects, encourage personnel to circumvent rigid procedures and bureaucratic red tape, reward and promote innovative personnels. ये कुछ रूल्स हैं जिसको हमने फॉलो करना है। encourage मेड से लेकर और रिवार्ड एंड promotion of innovation. These are the rules. Okay.
अब हमने कहा कि इनकरेजमेंट से लेकर रिवार्ड और प्रमोशन ऑफ द इनोवेशन, ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी, ऑफ द चेंज। अब इनकरेजमेंट के लिए क्या क्या स्टेप्स ज़रूरी हैं ताकि एक एंटरप्रेन्योरियल इन्वायरमेंट कायम हो सके। हाउ वी कैन इनकरेज द एम्प्लॉयज़ to become an entrepreneurial and to adopt an entrepreneurial approach in an organization. So कुछ steps हैं, there are some steps to help restructure corporate thinking and encourage an entrepreneurial environment. क्या क्या हो सकता है वो चीज़? सबसे पहले तो we need to identify potential entrepreneur। जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन एम्प्लॉयज़ को वी नीड टू आइडेंटिफाई, उसके बाद क्या है, वी नीड टू कन्विंस टॉप मैनेजमेंट फॉर एंटरप्रेन्योरियल projects. We need to convince them so that they can sponsor all the entrepreneurship and all the entrepreneurial projects. उसके बाद we need to create both diversity and strategy. क्या होना चाहिए? एक तो diversification and then उसके साथ साथ क्या, and order in strategic activities. Strategies, we need to make some strategy so that we can accomplish our objectives, our goals. उसके बाद we need to promote that entrepreneurship through experimentation. जो कुछ हमने एक्सपेरिमेंट किया, जो कुछ उसके रिजल्ट्स हैं, उसके प्लस उसके माइनस, each and everything should be placed in front of top management and we must promote. क्योंकि यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप में, जिस तरह पहले लेक्चर में मैंने कहा था कि देयर इज़ नो फेल्यूर, किसी किस्म का कोई फेल्यूर नहीं है, कोई नाकामी नहीं है। हर चीज़ के एक एक स्टेप होता है और एक स्टेप आपने क्लियर किया एक एक्सपेरिमेंट से, दूसरा स्टेप किया दूसरे एक्सपेरिमेंट से, तीसरा स्टेप किया तीसरे एक्सपेरिमेंट से। तो इसी तरह से ये एक सक्सेस लेडर है, ये सक्सेस स्टेयर है, ये सक्सेस स्टेप्स हैं विच लीड्स यू टुवर्ड्स द सक्सेस, टुवर्ड्स एन इनोवेशन। और उसके बाद हम आते हैं, वी नीड टू डेवलप कोलैबोरेशंस, वी नीड टू डेवलप कोलैबोरेशंस। कोलैबोरेशन होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के सतह पे और इंडिविजुअल या एंटरप्रेन्योर्स के दरमियान। जिस तरह मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि वेंचर कैपिटल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस को चाहिए कि वो स्पॉन्सर करें सो दैट द एंटरप्रेन्योरियल अप्रोच इवॉल्व्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो हमें क्या, वी नीड टू डेवलप द कल्चर ऑफ कोलैबोरेशंस एट लार्ज स्केल एज वेल एज एट स्मॉलर स्केल। ओके, इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं? मैंने अगर हम बात करें तो बेसिकली इन तमाम चीज़ों को अगर हम फोर्सी करें तो हम कहाँ जा सकते हैं, बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं? सबसे पहले तो ये खुद इनोवेशन क्या है? इनोवेशन लीड्स यू टुवर्ड्स डेवलपमेंट, टुवर्ड्स डाइवर्सिटी। ये क्या है? बेसिकली बेनिफिट्स हैं। टुवर्ड्स न्यू मार्केट, टुवर्ड्स न्यू अपॉर्चुनिटीज़। तो क्या है, आपको डिफरेंट किस्म के बिजनेस कल्चर्स की तरफ जो है आप चले जाते हैं, बिजनेस
cultures. यानी innovation itself is a big benefit for the market, for the people, for the organization. Innovation से आपके डेवलपमेंट आती है और डेवलपमेंट से डाइवर्सिटी. अब डेवलपमेंट फाइनेंशियल डेवलपमेंट भी है और नॉलेज बेस भी है. नॉलेज बेस डेवलपमेंट भी है ये. तो इसको हम अगर इस तरीके से देखते हैं तो ये एक पूरा इकोसिस्टम बन जाता है. तो इनोवेशन से डेवलपमेंट आई, डेवलपमेंट फाइनेंशियल डेवलपमेंट है यानी इकोनॉमिक इम्प्रूव हो रही है, उसके साथ साथ नॉलेज बेस, क्योंकि नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं मार्केट में, नई नई चीज़ें आ रही हैं, नई नई प्रोडक्ट्स आ रही हैं, तो नॉलेज बेस भी बढ़ गया. उसके बाद डाइवर्सिटी, एक डाइवर्सिफिकेशन का अमल होता है. डिफरेंट आइडियाज़ के साथ नई नई प्रोडक्ट्स, नए नए मार्केट स्ट्रेटजीज आ रही हैं, नई नई प्रोडक्ट्स आ रही हैं, न्यू मार्केट्स क्रिएट हो रहे हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं और एक पूरा का पूरा बिजनेस कल्चर नए सेक्टर को जन्म देता है. तो ये एक सबसे बड़ा जो है बेनिफिट है इस वक्त. अगर एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ देखें तो सबसे बड़ा बेनिफिट इनोवेशन खुद ही है. उसके बाद देखते हैं कि व्हाई वी नीड कारपोरेट एंटरप्रेन्योरशिप, या इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि द नीड फॉर कारपोरेट एंटरप्रेन्योरशिप. क्यों, कैसे इसको देखें, क्या कह सकते हैं हम इसको. हम लेते हैं सबसे पहले तो क्या, रैपिड ग्रोथ है जी. इसमें रैपिड ग्रोथ है. कॉम्पिटिटर्स में आपके नए नए कॉम्पिटिटर सामने आ रहे हैं. अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं करते तो दैट मीन्स यू लूज़ एवरीथिंग. इसकी मैं यूँ मिसाल देता हूँ. आजकल मोबाइल एरा है. किसी ज़माने में नोकिया वाज किंग, उसके बाद सैमसंग आया, फिर एंड्रॉयड, दिस दैट. आज देखें नोकिया स्मार्टफोन में आपको नहीं मिलेगा. क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इन्होंने अपने एक सर्किल में रहते हुए डेवलपमेंट की और दूसरे लोगों ने बाहर की दुनिया को कैप्चर कर दिया. यानी इन्होंने हार्ड कोर के ऊपर काम किया, इन्होंने सॉफ्ट कोर के ऊपर काम किया. और आज देखें कि एंड्रॉयड फ़ोन हर जगह पे, हर कंपनी का जो एंड्रॉयड फ़ोन है वो हर किस्म का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा है और हर एक के हाथ में आज नोकिया के बजाय क्या है, एंड्रॉयड फ़ोन है. वो सैमसंग का हो सकता है, वो किसी हुआई का हो सकता है, किसी और कंपनी का हो सकता है, लेकिन कम से कम नोकिया का नहीं है इस वक्त. तो ये क्या है, रैपिड ग्रोथ है मार्केट में. इसलिए एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट प्रोमोट, मस्ट डेवलप एंटरप्रेन्योरियल एज वेल एज इनोवेटिव कल्चर अमंग देम. उसके बाद एक और चीज़ हम करते हैं, मिसाल के तौर पे सेंस ऑफ मिसट्रस्ट इन ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ कॉरपोरेट मैनेजमेंट. जिस तरह आजकल दुनिया तेज़ी से बदल भी रही है और डिजिटलाइजेशन की तरफ मूव हो रही है, तो यहाँ पे क्या, अगर ट्रेडिशनल मेथड्स की बात करूँ, ट्रेडिशनल वर्सेस डिजिटल, तो आप किसको वोट देंगे? ओके, यस, थम्स अप डिजिटल को. आप डिजिटल, दैट मीन्स एवरी एंटरप्रेन्योर नीड्स टू वोट डिजिटल. वाई, क्यों? ओके. तो पहला पॉइंट आया कि ट्रेडिशनल में लूप होल्स ज़्यादा है. ट्रेडिशनल वे ऑफ वर्किंग, ट्रेडिशनल मेथड से में लूप होल्स ज़्यादा है. वेस्टेज ऑफ टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइजेस हैं. ओके, और बहुत सारी चीज़ें ऑब्सोलीट हो चुकी हैं एंड दे हैव बीन रिप्लेस्ड बाय डिजिटल. और क्या हो सकता है? वेल,
thought process problems, evolution. Okay, what else? जी आप बताएं. ओके आप ओके फाइन. So that means we need to shift our paradigm of working from traditional towards digital and digital towards innovative, and innovative means entrepreneurial. What? Entrepreneurial. तो हमें क्या, we need to establish the culture of entrepreneurship among organizations for the promotion, for the development of economy, for the promotion of new ideas, for the diversity, for the better opportunities in the market, and for the increasing or increment of the knowledge base of the economy as well of the people. Okay, आगे देखते हैं. जब हम इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ काम कर रहे हैं और ट्रेडिशनल में, तो इसमें क्या सबसे जो बड़ी चीज़ है और जो सबसे जो बड़ा ऑब्स्टेकल है वो क्या है? डाउन साइजिंग. मैं इसको डाउन साइजिंग के बजाय एक और लफ्ज़ दे देता हूँ. एंटरप्रेन्योरशिप के साथ जब आप आते हैं तो डाउन साइजिंग को हम दूसरे पहलू में ले लेते हैं, राइट साइजिंग. तो जब डाउन साइजिंग डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में आ रही होती हैं, तो वो डाउन साइजिंग बेसिकली क्या है? राइट साइजिंग और एक्चुअल साइजिंग हो रही होती है. और इसमें स्किल बेस लोगों की ज़्यादा ज़रूरत होती है विथ एन एंटरप्रेन्योरियल अप्रोच, एज वेल एज दे मस्ट बी इक्विप्ड विद द नॉलेज बेस, दे मस्ट बी स्किल्ड. ये सबसे बड़ा एक रीज़न है. उसके बाद आते हैं डिज़ायर्स. जो है ट्रेडिशनल तरीके से वो डिज़ायर्स तो बहुत सारी होती हैं, विश लिस्ट लंबी है, लेकिन आपकी एफिशिएंसी आपकी प्रोडक्टिविटी सफ़र हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ दोज ट्रेडिशनल मेथड्स. तो इसको करने के लिए टू एनहेंस द एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉयज, टू एनहेंस द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम, टू प्रोड्यूस मैक्सिमम प्रोडक्शन, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी, वी नीड टू मूव टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरियल अप्रोच. गॉट इट? ओके. नाउ क्या क्या मॉडल्स हो सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप स्ट्रेटजी प्रोसेस के अंदर? हम एक तो सबसे पहली बात, कोई भी चीज़ हम अगर आसान अल्फाज में ले लें, अगर जब तक कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आती तो तब तक हम क्या कर रहे होते हैं? अगर कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही तो दैट मीन्स हम अंधेरे में तीर चला रहे हैं. तो देयर मस्ट बी अ विजन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विच लीड्स यू टू एन ऑब्जेक्टिव. ठीक है, तो विजन. अब ये विजन क्या होता है? बेसिकली ये एक स्ट्रेटेजिक विजन होता है, ये एक स्ट्रेटेजिक विजन होता है. और यहाँ क्या होना चाहिए? एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रेटेजिक विजन. और दूसरा जो है इसको हम देखें तो जो सेकंड एलिमेंट है वो क्या है? प्रो एंटरप्रेन्योरशिप ऑर्गेनाइजेशनल आर्किटेक्चर. प्रो एंटरप्रेन्योरशिप ऑर्गेनाइजेशनल आर्किटेक्चर यानी ऑर्गेनाइजेशन का एक ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए जो एंटरप्रेन्योरशिप को हर स्टेप के ऊपर, हर स्टेज के ऊपर, चाहे वो ऑपरेशनल लेवल पे हो, चाहे वो डिसीजन मेकिंग के ऊपर हो, चाहे वो टेक्निकल लेवल पे हो, चाहे वो मैनेजरियल लेवल पे हो, वो प्रमोट किया जाए, प्रो एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर हो. उसका आर्किटेक्चर ही ऐसा आप बनाए ऑर्गेनाइजेशन का कि वो प्रो एंटरप्रेन्योरशिप हो. उसके बाद तीसरा एलिमेंट क्या हो सकता है? एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेसेस एंड बिहेवियर एज एग्जिबिटेड अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की. यानी जिस तरह हमने कहा विजन से शुरू हुआ, फिर उसके बाद
प्रो एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर होना चाहिए। उसका कल्चर तब होगा जब उसका उस ऑर्गेनाइजेशन का एक आर्किटेक्चर इस तरह होगा, यानी वो ऑर्गेनाइजेशन जिस तरीके से बनाई होगी उसी तरीके से उसको सपोर्ट किया जा रहा होगा। तो नंबर 1 इज एन एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रेटेजिक विजन, उसके बाद प्रो एंटरप्रेन्योरशिप ऑर्गेनाइजेशनल आर्किटेक्चर, उसके बाद एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस एंड बिहेवियर इज एग्जिबिटेड अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की। अच्छा जी, अब इसमें लिंक किस तरह मॉडल्स को आपस में किस तरह हम लिंक कर सकते हैं, लिंकेज किस तरीके से हो सकती है। तो सबसे पहले तो इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरियल कॉग्निशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस मेंबर्स। सबसे पहले तो जितने भी इंडिविजुअल्स एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी एक असेसमेंट होनी चाहिए, और उसके बाद शऊर बढ़ाना चाहिए, यानी कॉग्निटिव लर्निंग उनको देनी चाहिए हर मेंबर को। और कॉग्निटिव लर्निंग लीड्स टू एन एंटरप्रेन्योरियल अप्रोच। सेकंड क्या है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कंडीशंस ऐसी हों जो कि एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ को वेलकम कर रही हों। टॉप मैनेजमेंट का विजन जो है वो एंटरप्रेन्योरियल हो, जिस तरह लास्ट स्लाइड में भी मैंने बात की। आर्किटेक्ट भी उसको इस प्रोसेस को सपोर्ट कर रहा हो, इस बिहेवियर को सपोर्ट कर रहा हो। देन जो प्रोसेस है वो रिफ्लेक्ट करे हर एम्प्लॉय के ऊपर और हर मैनेजमेंट लेवल या स्केल के ऊपर कि वो एंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर ही सबका आ रहा है, यानी एवरी मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन has been welcomed to introduce an idea for the betterment of the organization which leads to the vision of an organization। उसके बाद आते हैं आउटकम रिजल्ट्स के ऊपर। तो रिजल्ट्स में भी जो एंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर से जो एक्शंस परफॉर्म हो रहे होंगे उसी से उस ऑर्गेनाइजेशन का आउटकम आ रहा होगा, और उसी आउटकम को देखते हुए हमें पता चल रहा होगा कि हम अपने विजन को लीड कर रहे हैं या नहीं। आगे बढ़ते हैं जनाब। कॉन्सेप्चुअलाइजिंग अ कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रेटजी, इसमें क्रिटिकल स्टेप्स हैं ऑफ कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रेटजी, जिसमें वी नीड टू डेवलप अ विजन, वी एनकरेज इनोवेशंस, we structural an entrepreneurial climate inside out and outside in।